Heavy rains and mudslides have damaged at least 25 houses completely, and over 30 have been partially damaged in the Ramban district of Jammu and Kashmir. 90 people have been rescued by the Jammu and Kashmir police from the rain-hit areas after continuous rainfall has triggered massive landslides. A section of the Jammu-Srinagar National Highway in the area was also impacted heavily, bringing traffic to a standstill. Officials have stated that the highway has been buried under a thick layer of rocks, mud and debris, leaving the hundreds of vehicles and goods carriers stranded. Authorities are working to clear the debris and restore the connectivity. Meanwhile, Union Minister Jitendra Singh has made a statement regarding the situation in the Ramban, stating that 3 people have died following a cloudburst that has triggered multiple landslides. The minister has urged the locals to not panic, as he assured swift help and resources to overcome the natural calamity. While the Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has tweeted that he is extremely anguished by the tragic landslide and the flash floods in the Ramban, which have caused considerable damage to life and property. We are in touch with the local administration to ensure immediate rescue efforts wherever needed. Later today, I will be reviewing the restoration, relief and repair plans, is what the statement by Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah is stated. Ajay Jandyal continues to be with me live on the broadcast. Ajay, has the Chief Minister taken stock of the situation? What more details will be followed up as the rescue and relief operations continue to take its speed? Yes, rescue operations still continues, but authorities are facing issues because of, connectivity. There is a bad connectivity between the areas where this landslide have occurred. It was last late night when basically this landslide occurred after a cloudburst took place on the top of the hills in the Ramban district, and immediately lot of mud basically came down, and that basically swept away about 24 houses, vehicles and other properties with them. So that's why the authorities are facing issues because of the connectivity, but NDRF, SDRF team have been pushed in to ensure that they have to rescue all the people. If there are 3 people have died till now, and operation still continues. Dr. Jitendra Singh, he also tweeted and shared this information that 3 people have died, and rescue and relief operation is continuously taking place. Authorities are also saying that we are making some temporary shelters for the people so that they can be accommodated. Those who have lost their life, food will be provided to them in that location. And another challenge is that rain is still happening over there, and if rain is going on, so definitely it is also hampering the relief and rescue work over there. Thank you, Ajay, for sharing more details. Meanwhile, my colleague Ajay has also filed the ground reports from Ramban. Let's now listen in. तो नाज़रीन, आपको ये लाइव मनाज़र इस टाइम मैं रामबन की दिखा रहा हूँ। रामबन शान पैलेस पे ये रामबन जो है पूरा पैनिक सिचुएशन में है अभी। तो यहाँ पे कई गाड़ियाँ जो है यहाँ मलबे की जद में आई है। उसके अलावा जो मैं बता दूँ तो कई घरों को नुकसान हुआ है। रामबन के सराउंडिंग एरिया में कई घर जो है इस तरह की जो इस फ्लड की सिचुएशन में जो है वो तबाह हो चुके हैं। अभी मैं ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जिनकी गाड़ियाँ गई है उनसे बात करेंगे। यहाँ पे सर, आपसे जानेंगे आपकी कौन सी गाड़ी है और आप बताइए कैसे कब हुआ ये? मेरी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। मैं एक्चुअली यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, यहाँ डिप्यूटेड था फॉरेस्ट चेक पोस्ट में। रात में मैंने यहाँ गाड़ी लगाई थी, तब बारिश नहीं थी, तो 12-1 बजे करीब मैं चला गया जब मेरी ड्यूटी ऑफ हुई। तो उसके बाद अचानक से बारिश हुई तो बहुत फ्लैश फ्लड हुआ। मेरी खुद की गाड़ी आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरी दबी पड़ी है। अभी वही देख। कौन सी गाड़ी है वो? टाटा नेक्सॉन है जी। तो उस टाइम निकाली नहीं आपने? आपको पता नहीं चला उस टाइम? ये सडनली सब हुआ, उतना टाइम नहीं मिला आने का। तो जब तक आए थे तब तक गाड़ी तो पूरी दब चुकी थी, तो उस कंडीशन में नहीं थे। अब देखते हैं क्या होता है। आप रामबन के लोकल हो तो क्या कहेंगे, इस तरह की सिचुएशन पहली बार रामबन में हुई है? हाँ, बिल्कुल पहले 15-20 साल पहले हमने सुनने में आता था कि यहाँ पे भी इस तरह ये फ्लड आता था, लेकिन उसके बाद बंद हो गया था। तो अब ये दोबारा अचानक से आज हुआ, तो ये क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि काफ़ी दीवारें वगैरह, वॉल वगैरह लगाई थी ऊपर, तो क्या कहेंगे इस पे? नहीं, कंस्ट्रक्शन इसका ये जो था फ्लड मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से देखा गया था, लेकिन जो ये कंस्ट्रक्शंस अनप्लान्ड वे में हुई है उसका रीज़न ये है कि जो कुछ नाला जो यहाँ भी डाइवर्ट हुआ है। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि ये होटल बीचों बीच इसने नाले को डाइवर्ट किया हुआ, आधा पोर्शन वहाँ हो रहा, तो काफ़ी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। अभी तक यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुँचे? अभी तक तो नहीं, उम्मीद है जल्दी पहुँचेंगे। तो बिल्कुल आपको ग्राउंड जीरो की सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रामबन शान पैलेस का इलाका है। तो यहाँ पे और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये कब हुआ? सर, ये सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हुआ है। सुबह 3:30 बजे? 3:30 से लेकर 6 बजे तक चलता रहा।
तो क्या कितना नुकसान हुआ यहाँ पे, क्या कहेंगे? नुकसान काफ़ी हो गया है, गाड़ियाँ काफ़ी अंदर चले गई हैं। तो रामबन में अभी आपको राहत की अभी कुछ ऐसे कोई काम चलाया इन्होंने, कोई ऑपरेशन लॉन्च किया, कोई एसडीआरएफ सिविल केवाटी पहुंची है? कोई नहीं पहुंचा है अभी तक। तो आपको ये ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ये शान पैलेस का इलाका है, पूरा जो है डूब चुका है, इस मलबे के दलदल में आ चुका है। और ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये इलाका है, और ये उस्मान होटल जो है काफ़ी जो है मेहनत से बनाया गया था, अब ये पूरा जो है डूब चुका है, मलबे की जद में आ चुका है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे रेड टेप का शोरूम है, ये देखिए ये भी पूरा डूब चुका है, मलबे की जद में आ चुका है। तो यहाँ पे राहत का काम जो है यहाँ पे शुरू किया है, एसडीआरएफ सिविल केवाटी की टीमें जो है पहुंची है, कई गाड़ियां जो है मलबे की जद में आई है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये पूरा जो है इसके नीचे जो है कई गाड़ियां डूब चुकी हैं। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि 2 माइनर बच्चे जो है बागना के इलाके में जो है वो इस फ्लड की जद में आने की वजह से उन्होंने अपनी जानें गंवाई है। तो ये तस्वीरें आपको ग्राउंड ज़ीरो से मैं इस टाइम दिखा रहा हूँ। रामबन पूरा तबाही के जो है इस आफत से जो है इस टाइम गुजर रहा है, और कई घरों को नुकसान हुआ है। रामबन की जो सराउंडिंग एरिया है, अगर मैं बात करूं तो रहमत मस्जिद, उसके साथ साथ जदीद जामा मस्जिद में भी नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो है सेरी के इलाके में वहाँ पे भी एक मस्जिद को जो है नुकसान हो रहा है, और साथ में जो है कई घर जो है इसकी जद में आए हैं। यहाँ पे एसडीआरएफ की जो यहाँ पे क्वार्टर है वो भी इसकी जद में आए हैं। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस टाइम रामबन जो है परेशानी के इस दौर से गुजर रहा है, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से भी जो है कंट्रोल नंबर्स जो है वो दिए गए हैं कि वहाँ पे जो है आप फ़ोन करके जो है राहत वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से जो है बचाव का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो रामबन एमएलए की जानिब से भी जो है बिल्कुल ट्वीट करके और ये बता दिया गया है कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन अभी सेफर इलाके में आप जाइए, अपनी जान बचाइए। उसके अलावा जो मैं बता दूँ तो रामबन जो है इससे पहले भी परनोद का जो है वाक़या आप जानते हो कि परनोद में जो है किस तरह से कई घर जो है जद में आए थे, अभी तक जो है उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। वो भी जो है 40 से 50 घर जो है उस लैंड सिंकिंग के मामले में जो है वो उससे जूझ रहे थे, लेकिन अब जो ये रामबन जो है इस तबाही के इस आफत से गुजर रहा है। मैं आपको बता दूं तो 18 तारीख से 22 तारीख तक जो जिस तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से जो एडवाइजरी दे दी गई थी कि इस तरह की जो है वार्निंग अलर्ट्स जो है दिए गए थे कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, और वार्निंग अलर्ट्स बिल्कुल जारी किए गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी बिल्कुल बता दिया गया था, लेकिन कल रात को जब बारिश आई, बारिश की वजह से जो है ये नुकसान आप देख रहे हैं, कई घरों को नुकसान हुआ है, कई दुकानें जो है इसकी जद में आई हैं, और ये जो मलबा आप देख रहे होंगे इसमें कई कीमती गाड़ियाँ जो है इस मलबे के नीचे है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितनी गाड़ियां हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो वार्ड नंबर 1 रामबन में वहाँ पे भी कई दुकानों को नुकसान हुआ है, साथ में मस्जिद को भी वहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें दिखाएंगे, और इसके अलावा जो 2 माइनर बच्चे बागना के इलाके में हैं वो भी मलबे की जद में आने की वजह से उनकी जानें जो है वो जा चुकी हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूँ नेशनल हाईवे 44 अभी जो है गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए भी बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें इस टाइम मैं शान पैलेस इलाके से दिखा रहा हूँ। ये आपको बता दें तो ये गाड़ियों के मालिकीन जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और उनकी गाड़ियां इस मलबे की जद में मलबे में जो है डूब चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कीमती गाड़ियां हैं काफ़ी इस मलबे की जद में आई हैं, लेकिन जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। ये देखिए स्कॉर्पियो एन गाड़ी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी जो है ये देख रहे हैं आप, ये स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये बिल्कुल जो है मलबे की जद में आई है। इसके साथ में पूरी लाइन में जो है यहाँ पे गाड़ियाँ थी वो बिल्कुल मलबे की जद में आने की वजह से उनका नुकसान हुआ है, लेकिन जानी नुकसान यहाँ पे अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है हमारे पास। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ थी, कितना नुकसान हुआ, उसके लिए मज़ीद जो है तहकीकात जारी है, और यहाँ पे बचाव का काम जो है शुरू कर दिया गया है। आप मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। Now viewers, on that note, let's